Hello students, in today's video lecture I will be talking about the macrolides antibiotics. In the macrolide antibiotics there are so many examples like erythromycin, azithromycin, clarithromycin and roxithromycin and even some more, right? In this antibiotic chapter, in this macrolide chapter, we will talk about in a same way as we discussed in the previous video lecture. We will cover the basic features of the macrolide antibiotic, and then after we will discuss the antibacterial spectrum, which is very important and every student must have the idea about the antibacterial spectrum of any antibiotic, right? And in third we will talk about the adverse effect, clinical use, and at last we will discuss the drug interaction, right? So initially in the basics, that in the macrolide antibiotic we should know in the all the macrolide antibiotics have their a large structure. In that large structure they have the lactone ring, they have the macrolactone ring, and from the macrolactone ring there will be attached one or two deoxy sugar molecule. So what we have discussed, macrolides are the macrolides having the larger structure. In their structure they have the lactone ring attached with the one or two deoxy sugars depending on the specific antibiotics. Initially when the macrolide came into the existence, the initial antibiotic which was discovered by the erythromycin and up to the 40 years 40 साल तक ये रन थी. इसके बाद स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के बाद इन द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन देयर स्ट्रक्चर अमाइनो सुगर इन द लैक्टोन रिंग, we concluded that there are so many other antibiotic that falls in the category of macrolide, that क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड रॉक्जिथ्रोमाइसिन. तो 40 साल तक की जो पहले की कहानी थी उसमें कंटिन्यू हमने पढ़ा एरिथ्रोमाइसिन को, राइट? तो हम बेसिक जो अपना फोकस करके चलेंगे, लाइक वी टॉक अबाउट द एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम. We will specifically initially we will talk about the erythromycin, and whatever will be specific for azithromycin and clarithromycin and roxithromycin I will discuss in separate. So if we talk about, this is the common thing that you all should know. What is the antimicrobial spectrum? These antibiotic also covers the gram-negative bacteria as well as gram-positive bacteria. But most of the antibiotic, but these antibiotics maximally they cover the gram-positive and few gram-negative bacteria. In their antibacterial spectrum, if we correlate these antibacterial spectrum with the penicillin G, we found that approximately their antibacterial spectrum overlaps with each other. It means जो पेनिसिलिन जी का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है वो और एरिथ्रोमाइसिन या मैक्रोलाइड का स्पेसिफिकली जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है वो अप्रोक्सीमेटली ओवरलैप करता है, सेम होता है. उसके लिए हम बात करेंगे तो आपको ये चीज ये पता होना चाहिए कि ओवरलैप पे सेम कर रहा पेनिसिलिन. इसीलिए कई बार आपको अगर एंटीबायोटिक में इस कंसेप्ट को जानना पड़ेगा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर स्पेसिफिकली द फर्स्ट चॉइस will be, first choice is penicillin G, but due to the special condition or special resistant to the penicillin G, the second choice of the antibiotic will in most of the cases will be macrolide antibiotic, right? Because they are having the same antibacterial, approximately same antibacterial spectrum. There are few bacteria against which these macrolide antibiotics is specifically highly sensitive, and few bacteria there which the against these antibiotics have moderately sensitive, and few of the bacteria or the group of species of bacteria in which the penicillin does not produce any effect, means the penicillin does not produce any bacterial spectrum, antibacterial spectrum, but the macrolide antibiotic for some specific bacteria species or the group shows एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम. मीन्स जो मैं कहना चाहता हूं उसमें यह बात है कि अब हम एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में बेसिकली पढ़ेंगे कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट हाईली सेंसिटिव होता है मैक्रोलाइड. उस चीज को हमको जानना होगा क्योंकि जिसके अगेंस्ट हाईली सेंसिटिव होगा उन्हीं बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होगी उनको ट्रीट करने के लिए मैक्रोलाइड को हम फर्स्ट चॉइस में रखेंगे.
फिर कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये मॉडरेटली सेंसिटिव होगा और कुछ बैक्टीरिया जैसे होंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जो पेनिसिलिन जी से तो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि इनका मैकेनिज्म इफेक्शन एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ओवरलैप कर रहा है, बट फ्यू बैक्टीरियाज के केसेस में वो ओवरलैप नहीं करेगा। वो फ्यू बैक्टीरिया जो होंगे वो स्पेसिफिकली मैक्रोलाइड से ही इनहिबिटेड होंगे, पेनिसिलिन जी से इनहिबिटेड नहीं होंगे। लाइक highly active bacteria against which the macrolide antibiotic work is Streptococcus pyogenes and Neisseria gonorrhea, Streptococcus pneumoniae, Clostridia, Corynebacteria diphtheriae and Listeria. So these are the group of or a bacteria against which the macrolide antibiotics is highly sensitive. There are some bacteria against which the penicillin G does not produce antibacterial spectrum, but macrolide produces antibacterial spectrum, and these bacteria are Campylobacter, like responsible for diarrhea, Legionella responsible for pneumonia, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma and B. catarrhalis. So these are the specific group of, or you can say the bacteria against which the penicillin G does not produce any effect, but erythromycin produces. There are some bacteria against which the moderately, why I am focusing this antibacterial spectrum, because अगर आपको एंटीबायोटिक का बेसिकली स्ट्रेंथ देना है अपने कंसेप्ट को या उस पर्टिकुलर टॉपिक के कमांड पानी है, तो आपको एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम का जो नॉलेज है वो होना ही चाहिए। और स्पेसिफिकली वन बाय वन बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उसको क्लिनिकल यूज से तो रिलेट करके पढ़ लेंगे बाद में, लेकिन अगर वन बाय वन करेंगे तो हमारे लेक्चर की रेलेवेंसी जो है नहीं रहेगी। इस वजह से हम यहां पे बात करेंगे ओनली नेम ऑफ बैक्टीरिया के और उनके मेजर इफेक्ट्स की। लाइक मॉडरेटली सेंसिटिव एच ड्यूक्रे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जेनाइटल सोर्स के लिए। अगर हम बात करें एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस जो कि वूपिंग कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो कि एसटीडी कैंक्रोइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डुक्रे रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो कि वेजाइनल अल्सर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसटीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, निसेरिया मेनिंजिटाइटिस एंड एट लास्ट रिकेट्सिया एज वेल। तो ये जो हमने फोकस किया वो हम बेसिकली टारगेटेड थे किसके एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए, एरिथ्रोमाइसिन के लिए, क्योंकि मैक्रोलाइड के अंदर एरिथ्रोमाइसिन भी है, एजिथ्रो भी है, क्लेरिथ्रो भी है, रॉक्जिथ्रो भी है, और भी कई सारी हैं। तो लेकिन जिनका मैक्सिमम क्लिनिकल यूज है हम उसकी बात करेंगे। तो लाइक एजिथ्रोमाइसिन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जो फोकस्ड होता है एजिथ्रोमाइसिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव इसके किसके अगेंस्ट होता है, एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, लेजियोनेला के अगेंस्ट, टोक्सोप्लाज्मा गोनाडाई के अगेंस्ट। तो अब इनसे जो इन्फेक्शन होने वाला है उसमें कुछ इन बैक्टीरियाज को ये एरिथ्रोमाइसिन भी इनहिबिट कर रहा है, लेकिन हम उसके लिए स्पेसिफिकली क्या यूज करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन उसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है। इन द सेम वे क्लेरिथ्रोमाइसिन इज ऑल्सो मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द एच इन्फ्लुएंजा। माइकोबैक्टीरियम एवाइबम कॉम्प्लेक्स, माइकोबैक्टीरियम एवाइबम कॉम्प्लेक्स क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि एचआईवी पॉजिटिव इंडिविजुअल में जो ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो जो ससेप्टेबल बैक्टीरिया होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा ट्यूबरक्लोसिस काज करने के लिए, उस ओवरऑल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलेंगे माइकोबैक्टीरियम एवाइबम कॉम्प्लेक्स के ट्रीटमेंट के लिए भी क्या यूज करते हैं हम, क्लेरिथ्रोमाइसिन। एंड ऑल्सो इट इज वर्किंग अगेंस्ट द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग पेप्टिक ulcer. So this is the antibacterial spectrum we have discussed majorly for the erythromycin, and we have also studied the targeted azithromycin against which the azithromycin works, and also we have discussed about the clarithromycin. Now we will talk about the pharmacokinetic. In the pharmacokinetic we see the erythromycin base जो है, erythromycin is a basic in nature and its nature that it is a acid labile substance, you can say the acid labile drug is erythromycin is a acid labile drug. acid labile means एसिड के अगर कांटेक्ट में आता है तो एरिथ्रोमाइसिन डिग्रेडेड होगा। तो अब क्या करना होगा हमको, चूंकि जब हम उसको इनटेक करेंगे तो स्टमक में एसिड का इंटरफेस उसको मिलेगा, चूंकि हमको पता है कि उसका नेचर ऐसा है कि
एसिड के संपर्क में आने पे वो क्या होगा, डिग्रेड होगा। तो उसको सेफ रखने के लिए हम उस पर कोटिंग करेंगे, और वो कोटिंग हम किसके कोटिंग करने की वजह से उसकी जो टारगेटेड हम जो करेंगे, इंटेरिक कोटिंग करने की वजह से जो हम उसमें टारगेटेड करेंगे उसको कहां पे रिलीज करने के लिए, इंटेस्टाइन में। तो इस वजह से वो एसिड लेवाइल होता है। इस वजह से ज्यादातर एरिथ्रोमाइसिन को हम क्या करते हैं, कोटिंग करके फॉर्म देते हैं। कोटिंग करने के फॉर्म्स में उसको टारगेटेड बना देते हैं ताकि वो कहां पर रिलीज हो, बेसिक एनवायरमेंट में, इट मींस इंटेस्टाइन में। फूड जो है एरिथ्रोमाइसिन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, इसीलिए हम फूड के साथ इसके इंटेक को नहीं एडवाइज करते हैं। फूड इंटरफेयर करता है इसके एब्जॉर्प्शन के साथ। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत ज्यादा होता है। ये इट हैज कैपेबिलिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा बट नॉट एबिलिटी टू क्रॉस द ट्रिपल बी। प्लेसेंटा को तो क्रॉस कर पाता है लेकिन ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाता। अब कई बार इसमें लगता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर लिया, ट्रिपल बी को क्रॉस क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके लिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हाईली लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। ये उतना ज्यादा हाईली लिपिड सॉल्युबल नहीं होता, इस वजह से प्लेसेंटा को तो कर लेता है लेकिन ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाता। नेचुरली द एरिथ्रोमाइसिन ड्रग इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में कंसंट्रेट होती है, और दिस कैन बी द एमसीक्यूज ऑफ जी पैट एज वेल। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एक्सक्रीशन ऑफ द एरिथ्रोमाइसिन इज मेनली थ्रू द बाइल। ये आपको याद करना पड़ेगा। एंड फॉर द क्लेरिथ्रोमाइसिन इट इज रीनल एंड बाइल, and for the azithromycin it is only up to from the renal. So this differences in the excretion of erythromycin, clarithromycin and azithromycin, you all must idea about this excretion differences. If we talk about the T half is 1.5 hour, and that's why we advise azithromycin one time in a day, while the erythromycin, if we talk about the erythromycin, this is the half life of erythromycin. For the erythromycin we advise 4 times in a day. तो ये भी एक डिफरेंस है, जो कि एजिथ्रोमाइसिन को हम एक दिन में एक बार लेते हैं, जबकि एरिथ्रोमाइसिन को एक दिन में 4 बार तक प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ होती है लॉन्गेस्ट होती है एजिथ्रोमाइसिन की। एरिथ्रोमाइसिन की कितनी होती है, 1.5 आवर ओनली। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल यूज की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किस तरीके से आपको बार बार मैं हर वीडियो लेक्चर में इस चीज का जिक्र करता हूं कि आपको ये डिटेल से करना है एंटीबैक्टीरियल का स्पेक्ट्रम, जब आप एंटीबायोटिक का चैप्टर पढ़ रहे होंगे। देखिए कैंक्रोइड, अब क्लिनिकल यूज में आप बात करें तो एक जो मैनेमिक्स है इसका आपको वो याद करना पड़ेगा, क्लॉ, CLAW। और CLAW के जो C से कुछ पार्ट्स है उसमें आपको पता, थैंक यू। Okay, already that we have talked about the antibacterial spectrum, and we have discussed the basic feature of macrolide antibiotics. And all student, you all have to be very clear cut idea about the antibacterial spectrum. Until and unless if you don't know about the antibacterial spectrum in detail, you cannot predict what can be the clinical use of these antibiotics. So you should understand this antibacterial spectrum in a proper way. As we have discussed the pharmacokinetic as well, and now we will talk about the mechanism of action. In the mechanism of action, as we have discussed on the previous antibiotic like tetracycline, chloramphenicol and aminoglycoside, they were also acting by inhibiting the synthesis of protein. But the inhibition of the synthesis of protein is due to the specific antibiotic specifically inhibit the specific steps, like in this case in the macrolide antibiotics, the macrolide antibiotics inhibit this is suppose this is the ribosomal assembly in a mRNA template. This red color line, चूंकि हम ऑलरेडी इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो अननेसेसरी इसको हम बार बार सेम चीज नहीं बोलेंगे। The mRNA template, this is simple mRNA template, and over the mRNA template this is 50S subunit and this is 30S subunit, and in the 50S subunit there are 2 types, peptidal side and the A side acceptor side. As we have discussed, the tRNA transfer RNA takes the cytoplasmic amino acid and put it into the over the acceptor side, and from the peptidal side that is already have formed the short chain,
जो ऑलरेडी प्रोटीन के अमाइनो एसिड की शॉर्ट चेन है वो जंप करके इस एक्सेप्टर साइट पे जाएगी और उस अमाइनो एसिड से ऐड होगी जो टीआरएनए लेके आया है। और ये सारी की सारी, लेट्स सपोज यहां पे अभी आप एज्यूम जस्ट सपोज करिए कि ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये जो चार अमाइन ए बी सी और डी, ए बी और सी, ये तीन अमाइनो एसिड जो हैं वो ऑलरेडी इस पी साइट पे प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि डी अमाइनो एसिड को टीआरएनए लाता है साइटोप्लाज्म से। जब वो साइटोप्लाज्म से ला के किसके ऊपर रखेगा, एक्सेप्टर साइट पे, तो ये जंप करके, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन का स्टेप, वो इस पे आएंगी एक्सेप्टर साइट पे, और सारी की सारी, जब ए बी सी पहले से हैं, अब वो डी से भी कंबाइंड हो जाएंगी, इस पे जो स्ट्रैंड बन जाएगा वो लॉन्ग हो जाएगी लेंथ, और वो पूरा लेंथ ट्रांसलोकेशन होगा और शिफ्ट होगा अगेन पेप्टाइडल साइट पे, और ये इधर प्रोटीन की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। मैक्रोलाइड किस तरीके से एक्ट कर रही है? मैक्रोलाइड बेसिकली जब ये चैन इस पे शिफ्ट होके आती है और इससे अटैच होती है, किससे? उस अमाइनो एसिड से जो एक्सेप्टर साइट पे लाई गई है टीआरएनए के द्वारा, तो उस अमाइनो एसिड को ऑलरेडी प्रेजेंट शॉर्ट चैन पे ये बाइंड नहीं होने देंगे जितने भी मैक्रोलाइड होंगे। तो ए साइड से इट मींस नहीं ट्रांसफर होगा किसका? अमाइनो एसिड का, उस अमाइनो एसिड का जो नेसेंटली अभी अभी लाई गई है टीआरएनए के द्वारा। इट मींस ए साइड से प्रोटीन चैन का, ए साइड से अमाइनो एसिड की शिफ्टिंग नहीं होगी इन द शॉर्ट चैन ऑफ प्रोटीन इन द पेप्टाइडल साइड, और उस स्टेप को हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का जो स्टेप होगा, जब ए से पी की तरफ शॉर्ट चैन मूव करेगी अमाइनो एसिड की, मींस प्रोटीन की, उस स्टेप को ब्लॉक करती है मैक्रोलाइड antibiotics. So this is the mechanism of macrolide antibiotic. By inhibiting through this mechanism, by inhibiting the protein synthesis, they perform the bacteriostatic action. Now we will talk about the clinical use. As we have discussed in the detail about the antibacterial spectrum, like we have discussed about they were moderately sensitive about H. ducrey. So we can say there are so many, like in the clinical use, they acts for अगेंस्ट द, दे यूज्ड इन द कैनक्रॉइड। आपको शॉर्ट क्या याद रखनी है? क्लॉ, CLAW। सी से क्या क्या आ रहा है? सी से कैनक्रॉइड। कैनक्रॉइड इज काज्ड बाय H. ducrey एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, राइट, इन द मॉडरेटली सेंसिटिव। एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द डिफ्थीरिया बिकॉज दे इनहिबिट द कोरोनी बैक्टीरिया डिफ्थीराई। कोरोनी बैक्टीरिया डिफ्थीराई हमने कहां पे पढ़ा है? Like ये कोरोनी बैक्टीरिया डिफ्थेराई। They also used in the campylobacter because they are specifically active against over the campylobacter bacteria. They used in the Legionella infection, Legionella, which is caused the infection in the lungs, loss of protein in the urine, and kidney failure. If it is due to the Legionella group of bacteria, it can be treated by the erythromycin. Atypical pneumonia, which is caused by mycoplasma pneumonia, as the mycoplasma pneumonia is also inhibited by this erythromycin macrolide group of antibiotic. So in atypical pneumonia induced by mycoplasma pneumonia, erythromycin also can be used. Whooping cough is caused by this Bordetella pertussis. This Bordetella pertussis is moderately sensitive, and this is that's why we use in whooping cough. Specifically, if we talk about these are the use of erythromycin. Specifically, if we talk about the use of azithro and clarithromycin, then as we have the idea about the azithromycin, it is highly sensitive about the azithromycin also acts against these group of bacteria, but they are highly sensitive against influenza, Legionella, and T. gondii. And clarithromycin is active against H. influenza, MAC, and H. pylori. That's why in the azithromycin is used in a urogenital infection, and the clarithromycin is used in the Mycobacterium avium complex and in a peptic ulcer induced by H. pylori. If we talk about the adverse effect, most of the adverse effect of the macrolide antibiotic is restricted maximum time up to the gastrointestinal tract, as these kind of antibiotics is responsible for modulating the motilin they influence the motilin receptor, and motilin receptor in the intestinal tract is responsible for
increasing the peristaltic movement, and that's why the antibiotic falls under the category of macrolide. Once stimulated the motilin, increase in the peristaltic movement of the intestine occur, and that will leads to the diarrhea like condition. And most of the GI related issues is due to the adverse effect of macrolide antibiotics. So this is the common, you all have to know कि GI related issues ज्यादा होते हैं. मॉडलिन की बात करें तो आप डायरिया की बात करें मॉडलिन रिसेप्टर से रिलेट करके बोल सकते हैं. अगर in same way there are microsomal enzyme like CYP3A4. As we know, this enzyme is responsible for the metabolism of so many numbers of drugs. If this antibiotic is responsible for inhibiting this enzyme, so because this enzyme is responsible for metabolizing so many antibiotic, if itself this enzyme will be inhibited, तो अब मेटाबॉलिज्म उन ड्रग्स का नहीं होगा जो इस एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रही थी. वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं? थियोफाइलिन, आपका कार्बामेजपिन, वैल्प्रोएट एंड एर्गोटामिन, टर्फेनाडिन एंड एस्टेमिजोल. तो इनका लेवल जब मेटाबोलाइज नहीं होंगे, इट मींस दे विल इंक्रीज देयर लेवल इन द ब्लड एंड दे विल प्रोड्यूस देयर toxicity. Like if we talk about the terfenadine especially, it causes the increase in the QT interval and polymorphic ventricular tachycardia which may be lethal sometime. So अगर इनका लेवल, ड्रग्स का लेवल by using the एंटीबायोटिक इनके एडवर्स इफेक्ट में आएगा, क्योंकि ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं जो इनको मेटाबोलाइज करते थे, तो उस एंजाइम के इनहिबिट करने से इनका लेवल बढ़ेगा और लेवल बढ़ने की वजह से वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट देंगे. लाइक हम टर्फेनाडिन में क्यूटी इंटरवल और पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बात कर रहे हैं. और मेनली जो आपको फोकस रखना है उसमें कि मैक्रोलाइड कैटेगरी की जो भी एंटीबायोटिक्स होंगी, मेनली जो इनका एडवर्स इफेक्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड है टुवर्ड्स द जीआईटी ट्रैक. सो दिस इज ऑल अबाउट. अगर आपको कंसेप्ट इसमें कंसेप्ट रखना है अपना, तो बेसिकली आपको टारगेट करना होगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पे अपने कंसेप्ट को फोकस करें. एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पे जैसे ही आप फोकस करते हैं तो आप क्लिनिकल यूज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. फार्माकोकाइनेटिक बहुत सिंपल है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है. जस्ट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ट्रांसलोकेशन पॉइंट को स्ट्रिप इनहिबिट कर रहे हैं, और थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में कि इसमें रिंग कौन सी है और कौन से अमाइनो 2-डीऑक्सी सुगर्स के कितने मॉलिक्यूल्स हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. फिर भी आपका कोई क्वेरीज रहती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर में कुछ कंटेंट आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए. थैंक यू वेरी मच.